आपका स्वागत है। आप जुड़े हैं कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और मॉनसून की विदाई शुरू हो गई है। 1 जून से 25 सितंबर तक देश में मॉनसून सामान्य से 5% ही कम रहा, यानी कि ऑलमोस्ट नॉर्मल। यानी मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि मॉनसून सामान्य है। वहीं सोने की कीमतें 3 हफ्तों के निचले स्तरों पर हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मौसम के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ IMD के सीनियर साइंटिस्ट RK जनमनी हैं। मिस्टर जनमनी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और क्लियरली जिस तरह का अगस्त था जो कि काफी घबराहट वाला था, सितंबर में हमने एक पिकअप होता हुआ देखा है, और अब जिस तरह की एक्सेस रेन सितंबर में आई है, सिर्फ 5% बिलो मॉनसून फिलहाल यहाँ पर है ओवरऑल। लेकिन किन एरियाज में आपने देखा है कि ज्यादा डेफिशिएंसी रही हो, जहां पर अभी भी चिंताजनक है? नहीं, बिल्कुल। जैसे अभी जो 26 तारीख तक जो है वो 5 से 6% अभी डेफिशिएंट है ओनली, एंड this is because of the September rain mainly, because that is 15 to 16% above normal excess September, and that specifically if we talk about September mainly almost normal to excess rainfall over all parts of India, almost all subdivision. Only northeastern states has the deficient in September minus 22%, and if we see the subdivision wise, so we have only in the month of September, it is East Uttar Pradesh and also some pockets in the northwest India like Haryana, Punjab, Chandigarh, and also Himachal Pradesh. We have less rain. But if we see season as a whole, so that covers the rainfall update from 1 June to 26 September, and that also we have a quite good rainfall over most of the subdivision, but marginal deficiency we could see something like Jharkhand, Gangetic West Bengal, and Bihar, which are 23 or 22 minus 23 minus 22% of the deficiency. But if we go to South India, we have a South Interior Karnataka and parts of Karnataka 27%, and Kerala remains highly deficient. Actually, Kerala is the highest deficient, minus 38%. Otherwise, if we see like Maharashtra interior parts, Gujarat and Madhya Pradesh, almost all area have become normal. So that way the monsoon has progressed well actually, and in the meantime, monsoon has withdrawn yesterday from some of the area of West Rajasthan, and by next 3 days it will withdraw from parts of Punjab, Haryana and Rajasthan and Kutch also. But rain will increase, mainly Jharkhand, Bihar and Bengal, and even Uttar Pradesh will get a fresh spell from the new system which is forming over North Andaman Sea. So maybe from 30th September to 3rd October, we'll have a good spell over eastern or northeast India. And so that's the latest update actually. Yeah. मिस्टर जनमनी, एरिया वाइज तो आपने बताया ही, लेकिन अगर मंथ वाइज देखा जाए तो मॉनसून की जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं रही यहाँ पर। जिस तरह से हमने अगस्त का महीना देखा, जून में भी काफ़ी यहाँ पर कम बारिश थी। ओवरऑल मॉनसून सीजन आप कैसे देखते हैं? और जैसे आपने कहा कि विड्रॉल अब कल से यहाँ पर शुरू हो गया है, जो भी थोड़ा डिलेड है, जैसे कि हमने पिछले एक डेकेड में देखा है मॉनसून विड्रॉल भी हल्का सा डिलेड रहता है, तो किस तरह से आप इस पैटर्न को देखते हैं? देखिए, if we see last 5 monsoon like 2019 or 2020 or 21, 22, 23, I think they are all comparable. Rather, 2009 we can see July was not good actually. But this year, since we had June, minus the marginal 10% or something, and July was excess something like 14% plus, and then plus 14%, and then August of course was worst. But because the July 2023 has been good, so agriculture in terms of the acreage and September has come up as a good. That is number one. So we even though we got some months deficient, but you don't get 2 consecutive months deficient. That is number one. And number two is that we don't get much flooding this year. That's a very big advantage, particularly for Maharashtra, Gujarat, and Karnataka, which experienced a frequent flood in all the earlier monsoon. Take 2019 August, Karnataka, 2020, 2021, we have seen Maharashtra, the Satara, Kolhapur flood, very high rainfall it was there, and people getting affected. So, and September, if we get back to last monsoon 2022, the second half of the September was worst affected Uttar Pradesh and all these areas. So even though Uttar Pradesh was lesser rain, but because of the flooding in September second half,
So crop during the mature phase was most affected. But this 2023, neither flood nor having excess rain in terms of getting flooding over some area is not there. September rain, if we see, it has been quite good in terms of the distribution and period. Every day getting some rain. So I find that 2023 is better than 2022. Personally, I feel. Even though rain-wise we are getting -6 or something like that, -5, whereas 2022 was +7, quite higher side. So in terms of the flooding and impact, this 2023 is much less compared to last 5 monsoon. Yeah, that I can see. Absolutely, I absolutely agree with you. जी हाँ, पिछले साल में जिस तरह की हमने हानियां होते हुए देखी थी, वो इस साल में यहाँ पर सुनने को नहीं मिली हैं। और बॉम्बे में, महाराष्ट्र में भी हमने यहाँ पर फ्लड्स इस बार आता हुआ नहीं देखा है। एक फाइनल सवाल मिस्टर जनमनी, और एल निन्यो को लेकर अब यहाँ पर किस तरह की स्थिति है? एज अ वेदर वॉचर कैसे देख रहे हैं आप इसको, और अगले फ्यू मंथ्स में यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? No, actually, as it was expected, if we see when we issued on 11th April the long-range forecast, I can get back to those video you highlighted. We were telling that second half will get affected. Overall, it will be normal. So very interestingly, the El Nino impact was only limited when IOD was not developed, actually. Now scientists are telling that September excess is mainly because some IOD positive side. So that we are analyzing. But why August, IOD could not counteract this impact of the El Nino, that we have to see. Overall, if we see in coming days, September has been plus 15%. So I don't think, because as you know, that the post-monsoon, the El Nino is other way actually. Normally, if we take a long period data, it does not affect much the post-monsoon rainfall. Only El Nino impact continue in the monsoon period. But whatever we got, August has been affected. But beyond that, I don't see much impact of the El Nino. But our monthly forecast and seasonal forecast coming actually in the end of the September. So the picture will be more clear. Yeah. Absolutely. मिस्टर जानमनी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे लिए समय निकालने के लिए, और बहुत डिटेल में वो पूरा मानसून का सीजन समझाने के लिए भी। तो क्लियरली जैसे उन्होंने कहा कि पिछले 5 मानसून काफी कंपैरेबल रहे हैं, और पिछले मानसून से ये मानसून बेहतर है क्योंकि बारिश की जो स्थिति रही है वो हल्की सी बेहतर रही है। सितंबर ने काफी कवर किया है, 2 महीने साथ में यहाँ पर ड्राई नहीं रहे, तो हमने वो बुआई का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा गिरता उस वजह से भी नहीं देखा। और जैसे उन्होंने मेजरली कहा कि बहुत फ्लडिंग हमने इस मानसून सीजन में जो मेजर एरियाज हैं जहां पर यूजुअली देखा जाता है वो भी देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल एक गुड मानसून के तौर पर, और -5% के साथ फिलहाल हम जूझ रहे हैं। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि अगर इस महीने के अंत में फिर से बारिश पिकअप होती है तो वो नंबर भी शायद यहाँ पर सटीक होता हुआ नजर आएगा। बात अब यहाँ पर सोने की कर लेते हैं, जहां पर मुनाफा वसूली लगातार बनते हुए नजर आई है। अगर आप मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक का चार्ट देखें तो नेगेटिव में यहाँ पर कारोबार फिलहाल है। कैसे देखते हैं आप इसे प्रियांक? किस तरह से सोने के प्राइसेस यहाँ से आगे बनते हुए नजर आएंगे? गुड इवनिंग मनीषा जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक रेंज में मूव हो रहे हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स वो ऑलमोस्ट हम 106 के आसपास के लेवल्स देख रहे हैं, वो 10 मंथ्स हाई है। एंड प्लस जो यूएस 10 ईयर यील्ड जो है 4.5 के आसपास है, वो ऑलमोस्ट 15 to 16 ईयर्स हाइस पे है। तो वो एक डैम्पनिंग इफेक्ट का काम कर रहा है बुलियन कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ओवरऑल ये जो टोन है साइडवेज टू बेरिश, ये शॉर्ट टर्म में बना रह सकता है। और अगर मैं ब्रॉडर रेंज की बात करूं तो 1900 से लेके 1880 ये लोअर साइड रेंज है, और हायर साइड पे 1940 1950 ये एक रेजिस्टेंस जोन्स है। तो ये जो 1950 से लेके 1880 ये रेंज में ही हमने देखा है कि गोल्ड को लास्ट फ्यू वीक से ट्रेड करते हुए, और गोइंग फॉरवर्ड भी मुझे लगता है कि ये रेंज बना रहेगा। 1940 1950 कन्विंसिंगली क्रॉस करने के बाद ही इसमें तेजी का मोमेंटम गोल्ड में फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म बन सकता है। और MCX की अगर मैं बात करूं तो 58,300 से लेके 58,000 ये एक लोअर साइड जो रेंज है वो एक सपोर्ट का रेंज काम करेगी इन वेरी शॉर्ट टर्म। और 59,500 59,600 ये हायर साइड लिड है प्राइसेस के लिए। तो 59,500 600 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है फॉर एनी काइंड ऑफ बुलिश मोमेंटम टू पिक अप फ्रॉम हियर। और सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में भी
मोरलेस गोल्ड की तरह रेंज है, बट जो रेंज है वो काफी बड़ी है क्योंकि हाई बीटा है कंपेयर टू गोल्ड। सिल्वर में भी 22 से लेके 25, ये एक $22 से लेके $25 ऑन द हायर साइड, ये रेंज है। यही रेंज में हम लास्ट फ्यू मंथ से इनफैक्ट ट्रेड कर रहे हैं और अभी भी ये रेंज इंटैक्ट है। तो एमसीएक्स की अगर मैं बात करूं तो 71,000 70,000 ऑन द लोअर साइड, ये एक सपोर्ट बैंड रहेगा और हायर साइड 74,000 75,000 ये एक रेजिस्टेंस बैंड रहेगा। तो मोर और लेस मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर आने वाले कुछ दिनों के लिए ये रेंज में प्ले आउट करते हुए दिखेंगे। ऑलराइट, तो सोने की यहाँ पर एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन जैसे कि बताया गया जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो अगर सोना होल्ड करता है तो ही इन स्तरों पर रह पाएगा, अदरवाइज एक बड़ी मुनाफा वसूली की भी एक्सपेक्टेशन है। हमारे साथ कुमार जैन जी भी अब यहाँ पर जुड़ चुके हैं जवेरी बाजार से। कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं आप एक तो, और दूसरा कैसे देखते हैं आप आगे जाकर भाव और जिस तरह की मांग इन करंट लेवल्स पे है? बिल्कुल, मांग बहुत अच्छी मांग आई है। गणपति बापा ने के लोगों के यहाँ पे वापस भीड़ भाड़ शुरू कर दी, फेस्टिव सीजन शुरू हो गए, एक अच्छी सी मांग आई और इससे अब तक जो पुराना आने वाले समय में शादियों की भी मांग आई। लोग रिसाइकल गोल्ड यूज कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में कि सोना और तेज जाएगा, सबके दिमाग में बराबर ये बात बैठी हुई कि सोना तेज जाएगा और हम भी अनुमानित कर रहे हैं कि सोना तेज जाएगा। इससे अच्छी डिमांड आई है, एक बहुत सुंदर सी डिमांड है। अभी भी इस समय मेरी दुकान अगर आप वीडियो कॉल में आपको दिखा था कि पूरी भरी हुई है, दोनों शोरूम ऊपर के भी शोरूम भरे हुए और ग्राउंड फ्लोर भी भरा हुआ है। तो लोगों के दिमाग में ये बात बराबर बैठी हुई है कि शादियां हैं, भरपूर शादियां भी इस समय अच्छे आंकड़े, शादी आंकड़े भी पंडित जी हम आपको अगले व्यू में देंगे, अगले इंटरव्यू में देंगे। तो आंकड़े भी बड़े ज्यादा है पहली बार भी, और शादियां हैं और लोगों का ये जो घटा हुआ भाव है 60,000 का जो भाव है, एक बेस्ट टाइम है लोगों की खरीदारी के लिए। ऑलराइट, तो यानी कि भाव यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं और ऐसा माना भी जाता है कि गणेश चतुर्थी के बाद यहाँ पर सोने की खरीदारी का श्री गणेश भी शुरू हो जाता है और भाव जिस तरह के हैं 59,000 के नीचे, 60,000 के नीचे, ये बेहतर स्तर भी हैं खरीदने के लिए। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं स्पेशली चांदी के प्राइसेस, क्योंकि सोने में तो गिरावट है ही, चांदी में अगर पिछला एक महीना देखा जाए तो गिरावट काफी बड़ी है। नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे अगर गिरावट की बात करें तो ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन लोअर लेवल्स पर हम देख रहे हैं कि $22.5 जो है वो कॉमेक्स में एक अच्छा सपोर्ट जो है चांदी में देखने को मिला है। और भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि 70,000 के जो स्तर है वो सिल्वर लंबे समय से होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी एक ब्रॉडर रेंज यहाँ 22.5 से 24.5 जो है वो लगभग $2 के बीच में इंटरनेशनल मार्केट में बनी हुई है और भारतीय बाजारों में भी 70 से 75 के रेंज में हम चांदी को घूमते हुए देख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि आगे यहाँ फेस्टिव सीजन है, डिमांड अच्छी रहेगी, तो लोअर लेवल्स पर एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग के लिहाज से। तो फिर से एक बार अपने सपोर्ट्स लेवल 70,000 70,500 के स्तर के आसपास अगर सिल्वर आती है तो बाइंग के लिहाज से एक अच्छा मौका रहेगी और फिर एक बार हम 75,000 तक कीमतों को जाते हुए देखेंगे। ऑलराइट, तो बुलिशनेस ऑफ कोर्स यहाँ पर प्राइसेस में है, लेकिन करंट जो करेक्शन है वो एक्यूमुलेशन के तौर पर यहाँ पर देखना चाहिए, यही सबकी राय फिलहाल एक्सपर्ट्स की। और जैसे कुमार जी ने भी कहा कि बाजार में भी ऐसा लगता है कि भाव आगे जाके चढ़ जाएंगे, तो ये अच्छा मौका है खरीद लेने का। शुक्रिया कुमार जैन जी, साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, हमारे साथ मनोज जी और प्रियांक बने रहेंगे, आपको कमोडिटी स्ट्रैटेजीज बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है, हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं और मनोज जी आपसे पहले जानना चाहेंगे क्या है आपकी आज की टॉपिक्स? मनीषा जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक तो डॉलर इंडेक्स में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है और जो दूसरा हमने देखा है कि सितंबर मंथ में जो रेनफॉल हुआ है उसके चलते फिर एक बार यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है वो एग्री कमोडिटी के लिए थोड़े कमजोर पड़ते हुए नजर आए हैं और उसी का असर हम देख रहे हैं कि चौतरफा बिकवाली यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है पिछले कुछ सेशन से। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे कपास जो NCDX अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 1594 के स्तर पर बिकवाली की रणनीति बनाना चाहिए 1612 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य जो रहेगा वो 1570 रुपए का रहेगा। दूसरा यहाँ पे मसाला कॉम्प्लेक्स में भी जो है दबाव देखने को मिला है, तो हल्दी अक्टूबर वायदा में 14,100 के स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी 14,400 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि 13,500 तक के लक्ष्य यहाँ 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो वो यहाँ पर दो राय हैं, एक तो कपास पे और दूसरी हल्दी में, जहां पर आपको कारोबार करने की राय है। हल्दी आप देख सकते हैं 2% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार। प्रियांक, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ हैं आज?
हमारी आज पहली पिक क्रूड ऑयल में रहेगी। हमने देखा कि क्रूड ऑयल में एक वन साइड रैली हमने देखा टुवर्ड्स 7800 के आसपास, और वहां से करेक्शन सेट इन होते हुए देखा है। अभी भाव 7400 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर जो पुल बैक आती है वो यूटिलाइज करनी चाहिए सेल करने के लिए। 7470 के आसपास सेल किया जा सकता है। 7610 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 7300 7250 ऑन द लोअर साइड ये टारगेट जोन्स रहेंगे। दूसरे पे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स है एल्यूमिनियम में रहेगी। हमने देखा है कि एल्यूमिनियम एक आउट परफॉर्मर है, रिलेटिवली पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 204 हाफ के आसपास। 201 का स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट टर्म में 210 के टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, तो कुछ खरीदारी की राय यहाँ पर आती हुई, लेकिन प्रियांक अगर कॉपर में कुछ करना हो तो वहां पर क्या राय है? कॉपर में हमने देखा है कि एक बेस मेटल्स में जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में तेजी हुई है, तो कॉपर में विपरीत डाउनसाइड का मूव आते हुए देखा है। तो अभी भी जो 713 के आसपास के ट्रेड्स हो रहे हैं, करंटली 710 से लेके 705 ये एक सपोर्ट बैंड दिखता है। बट अभी यहाँ पे कोई बॉटम फिशिंग का अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि जो अगर रैली मिलती है मे बी अराउंड 718 के आसपास, तो वो एक रेजिस्टेंस रहेगा, वहां पे सेल इनिशिएट किया जा सकता है। 725 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड ऑन द लोअर साइड 708 710 के टारगेट्स रहेंगे। साथ ही अगर बात यहाँ पर गुआर की जाए तो मनोज जी यहाँ पे क्या राय है? ग्वार में भी साफ तौर पर जो जिस तरह से मैंने बताया मनीषा जी की जो रेनफॉल हुआ है सितंबर में, उसके बाद से थोड़े फंडामेंटल चेंज होते हुए नजर आए हैं। और अभी यहाँ पे अराइवल्स भी जो है स्टार्ट हो गए हैं नए क्रॉप के, तो उसके चलते भी थोड़ा कीमतों में दबाव है। तो हमारा मानना है कि ग्वार अक्टूबर जो कॉन्ट्रैक्ट है कहीं ना कहीं 5550 से 5600 के दायरे में एक सपोर्ट जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो वर्तमान लेवल से भी यहाँ लगभग 100 से 150 रुपए तक की गिरावट और ग्वार सीट में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर ग्वार गम की बात करें तो यहाँ भी 11400 के आसपास जो है टेक्निकली सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। वर्तमान लेवल से भी लगभग 1 से 2% की गिरावट और अभी यहाँ दोनों ही कमोडिटीज में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, यानी कि कुछ मुनाफा वसूली अभी भी गुआर सीट गुआर गम में बाकी है। यहाँ पर जाते जाते एक फाइनल सवाल प्रियांक, ये है नेचुरल गैस पे, क्योंकि ये कमोडिटी थोड़ा सा हमने अच्छी खासी चढ़ते हुए देखी थी। फ्यूचर्स या ऑप्शंस की बात की जाए तो वहां पर भी वॉल्यूम्स अच्छे खासे थे। एज ऑफ नाउ जैसे अटकती हुई नजर आई है, कैसे देखते हैं आप पार्टिसिपेशन और प्राइसेस एक्सपेक्टेशन? नेचुरल गैस में हमने देखा है कि एक ब्रॉड रेंज में ही कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी भी जो ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड सस्टेन नहीं कर रहे हैं। 250 से लेके 200 ये एक ब्रॉड रेंज में नेचुरल गैस के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। और अगर मैं अभी शॉर्ट टर्म सिनेरियो की अगर बात करूं तो 225 के आसपास का रेजिस्टेंस बनता है और 210 209 के आसपास का एक सपोर्ट बनता है। तो ये वेरी नियर टर्म रेंज है। तो ये नियर टर्म अगर रेंज किसी को प्ले करनी है तो 210 205 के आसपास आता है, तो वहां पे कॉल ऑप्शंस खरीदे जा सकते हैं एट द मनी ऑप्शंस। एंड फ्यूचर्स में भी अगर 209 210 के आसपास आता है तो वहाँ वो एक सपोर्ट जोन्स है, तो वहां पे बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 200 के नीचे का रहना चाहिए और फिर से 220 225 ये जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऑलराइट, तो वो तमाम कमोडिटीज हैं जहां पर आपको स्ट्रैटेजीज बताई गई है। आशा है आपने नोट डाउन की होंगी। बहुत शुक्रिया मनोज जी, प्रियांक साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम स्ट्रैटेजीज को शेयर भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।